Hello guys, good morning all of you. Today we are going to discuss about DSSB PGT previous year question. First question is according to section 44 of the competition law, the penalty for making false statements or omissions to furnish material information by any party is. First option is minimum penalty of rupees 50 lakh and maximum penalty up to rupees 1 crore. Second option is minimum penalty of rupees 25 lakh and maximum penalty up to rupees 1 crore. And third option is minimum penalty of rupees 5 lakh and maximum penalty up to rupees 50 lakh. And fourth option is minimum penalty of rupees 10 lakh and maximum penalty up to rupees 50 lakh. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिनिमम पेनल्टी ऑफ रुपीज़ 50 लाख एंड मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ टू रुपीज़ 1 करोड़. And question number second is fill in the blanks was propounded by Professor William Ochi. First option is theory X, second theory Y, third is ERG theory and fourth option is theory Z. तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा थ्योरी जेड. विलियम ओची को क्या प्रोपाउंड किया था? थ्योरी जेड. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अ स्टाइल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट टिपिकली टॉक्स अबाउट विच ऑफ फॉलोइंग. First option, targets should be achieved within a defined time limit. Second option, management should be involved in day-to-day working without allowing any exceptions. Third option is management should not involve themselves in routine things and must concentrate on strategies. And fourth option is management cases must not be included in management and be treated as special cases. इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. Management should not involve themselves in routine things and must concentrate on strategies. Question number 4 is International Finance Corporation, an affiliate of the World Bank, was established in the year. तो वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज 1960, सेकंड 1956, थर्ड ऑप्शन इज 1972 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1985. इसका आंसर हो जाएगा 1956, ऑप्शन नंबर बी. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज मर्जर डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अमलगमेशन. सेकंड इज अंडर नो सर्कमस्टांसेस अमलगमेशन लीड्स टू liquidations of an existing company. Third is amalgamation includes absorption. And fourth option is internal reconstructions is an integral part of amalgamation. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मर्जर डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अमलगमेशन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNCTAD, अ बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो UNCTAD का फुल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. सेकेंड ऑप्शन इज यूनाइटेड नेशंस कमिटी on Trips and Development. Third option is United Nations Consortium on Transport and Those. And fourth option is United Nations Conference on Trade and Development. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. UNCTAD का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम इज डील्ड विद इन. First option is accounting standard 22, second is accounting standard 13, third is accounting standard 20 and fourth option is accounting standard 9. इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी में एजम्स नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन इज एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल्स इन यूनिट इज नॉट नॉन. सेकेंड इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली, दैट इज द लीड टाइम इज 0. थर्ड ऑप्शन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट आर नोन एंड दे आर फिक्स्ड. एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज कॉन्स्टेंट एंड इज नोन एज वेल. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल्स इन यूनिट्स इज नॉट नॉन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है UNCTAD was established by the United Nations in the year. फर्स्ट ऑप्शन 1958, सेकेंड ऑप्शन 1964, थर्ड ऑप्शन 1950 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1968. इसका आंसर होगा 1964.
Next question is, which of the following statements regarding national commissions is not true as per the Consumer Protection Act? First option is, the commission consists of 8 members, out of which minimum 2 members are women. Second option is, the commission hears the appeals made against the decisions of the state commission. Third option is, the commission hears the appeals made against or complaints where the value compensation. And fourth option is, the chairman of the commission must be a sitting on retired judge of the Supreme Court. सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें 8 मेंबर्स नहीं होता, मिनिमम 2 मेंबर्स, ये रॉन्ग है। क्या है इसमें? कमीशन विल कंप्राइजेस 4 to 11 मेंबर्स और एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट भी, इसमें मतलब एक वुमेन का होना ज़रूरी होता है। और ये मेंबर का कितना होता है? 4 से लेके 11 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें क्या बोला है? नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, while preparing a cash flow statement, cash receipts from royalties, fees, commissions, etc. come under. First option is production activities, second is operating activities, third is financing and fourth option is investing. तो cash flow इन्वेस्टमेंट में cash receipts और from royalties, fees, commission, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, in an area in which business and trade law are different from the rest of the country and are located within a country's national borders. However, they are treated just like foreign territory for the purpose of trade and commerce. First option है SEZ, second SHG, third is trade zone and fourth option is industrial corridor. तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? SEZ। SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द ऑड वन आउट विथ रिगार्ड टू टेरिफ्स एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स इन फॉरेन ट्रेड। टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज कंसुलर formalities, second is licensing, third is voluntary export restraints and fourth option is import duties. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, voluntary export restraints. नेक्स्ट क्वेश्चन, abnormal effectiveness or wastage valuation is done on the basis of, first option is cost per unit of goods, second amount received from sale of normal wastage, third option है valuation of closing stock in each process and fourth option cost of raw material purchased. इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो कौन 2 फैक्टर थ्योरी दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, सेकंड है क्लेटन एल्डरफर एंड थर्ड है हेनरी मिन्सबर्ग एंड फोर्थ ऑप्शन फ्रेडरिक हर्जबर्ग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। क्या दिए थे? 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कौन दिए थे? फ्रेडरिक हर्जबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू हैस्ले प्रीमियम प्लान टाइम वेज इज गारंटीड विद अ बोनस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वेज फॉर टाइम सेव्ड। फर्स्ट ऑप्शन 33.33%, सेकेंड ऑप्शन 50.00%, थर्ड ऑप्शन 66.66% एंड फोर्थ ऑप्शन इज 90%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। 50%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे, फिल इन द ब्लैंक्स इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशंस एंड रीडिजाइन ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज टू अचीव बिजनेस गोल्स एंड वर्क फॉलोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। First option is strategic management, second option is total quality management, third option is business process re-engineering and fourth option is knowledge management. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे, द गोल ऑफ मैचिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट आर सेंट्रल टू perform a job as determined by job analysis with the prospective employees' knowledge, skills and abilities is called technically in management language as। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सन जॉब फिट, सेकंड है KSA फिट, थर्ड है कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज पोटेंशियल अप्रेजल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पर्सन जॉब फिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच लिस्ट डज इंडिया बिलोंग इन द UNCTAD मेंबरशिप। तो UNCTAD मेंबरशिप किस में बिलोंग करता है इंडिया में? फर्स्ट ऑप्शन लिस्ट सी, सेकंड लिस्ट डी, थर्ड ऑप्शन लिस्ट ए एंड फोर्थ ऑप्शन इज लिस्ट बी। तो फ्रेंड्स UNCTAD जो मेंबरशिप है वो अंडर लिस्ट किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट ए के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेप वाइन मस्ट बी कैटेगराइज्ड अंडर। तो ग्रेप वाइन किसके अंतर्गत कैटेगराइज्ड होता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टाइल ऑफ लीडरशिप, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फोर्थ ऑप्शन इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। Fill in the blanks is a group of employees who meet regularly to discuss their problems, investigate causes, recommended solution and take corrective actions. This is generally a small group of employees belonging to the same work area. First option is line organization, second is quality circle, third is committee organization and fourth option is staff organization. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में हेल्प इन बिल्डिंग एंड इनोवेशंस इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा बिल्डिंग में हेल्प हो सकता है इनोवेशन में? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग फॉर्मल ओरिएंटेशंस विथ एडिक्वेट ब्यूरोक्रेसी, सेकंड है स्ट्रिक्टली अडहेरिंग टू टारगेट्स एट एनी कॉस्ट, थर्ड है फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ ऑप्शन है फॉलोइंग इफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल टीम्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉलोइंग इफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल टीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ बॉन्डिंग कंपनी एग्रीज टू रीइम्बर्स अ फर्म अप टू अ स्टेट अमाउंट फॉर फाइनेंशियल लॉसेस कॉज्ड एक्सक्लूसिवली बाय डिसऑनेस्ट एक्ट्स ऑफ मैनेजर्स और अदर एम्प्लॉइज। फर्स्ट ऑप्शन जीरो कूपन बॉन्ड, सेकंड है इंडेमनिटी बॉन्ड, थर्ड है फिडलिटी बॉन्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा फिडलिटी बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks is the interest earned on a given deposit or a principal that has become a part of the principal at the end of a specified period. First option is simple interest, second is time value of money, third is capital and fourth option is compound interest. इसका आंसर हो जाएगा compound interest. Next question is, which among the following aims at promoting corporate fairness, transparency and accountability? First option is corporate governance, second is corporate knitting, third is lifting of corporate wheel and fourth option is corporate social responsibility. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, corporate governance. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन UN इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेकंड UN जनरल असेंबली, थर्ड इज UN सोशल काउंसिल एंड फोर्थ ऑप्शन इज UN सिक्योरिटी काउंसिल। इसका आंसर होगा UN जनरल असेंबली। Next question is, the formula 1/3 notional profit case received by work certified is used in contract costing when? First option is the completion of contract is more than 75% but less than 90%. Second option is the completion of contract is more than 25% but less than 50%. And third option is the completion of contract is more than 50% but less than 75%. And last option is the completion of contract is less than 25%. इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा? मोर देन 25% और लेस देन 50% होगा। मोर देन 25, लेस देन 50। क्वेश्चन नंबर 29, वोगी स्टैंडर्ड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो वोगी स्टैंडर्ड को क्या के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन बेसिक वेस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड, सेकंड है अटेनेबल स्टैंडर्ड्स, थर्ड है आइडियल स्टैंडर्ड्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज एबनॉर्मल लॉस स्टैंडर्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा आइडियल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर्स द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, रॉयल्टीज अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें क्या होगा? कौन सा इसमें आएगा? ऑप्शन नंबर ए है, व्हेन रॉयल्टी पेबल इज मोर देन द मिनिमम रेंट। तो जब रॉयल्टी पे करते हैं ज़्यादा मिनिमम रेंट से तब ये एंट्री होता है। वह सेकेंड ऑप्शन है, व्हेन देयर इज अ नॉर्मल पेमेंट ऑफ लीज रॉयल्टी, जब नॉर्मल पेमेंट करते हैं लीज रॉयल्टी का।
एंड थर्ड है व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट इन लीज, जब लीज में प्रॉफिट होता है तब ये एंट्री होता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है व्हेन रॉयल्टी पेबल इज लेस देन द मिनिमम रेंट, या फिर रॉयल्टी जब लेस पे करते हैं मिनिमम रेंट से तब ये एंट्री होता है। तो फ्रेंड्स ये एंट्री कब होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, जब रॉयल्टी हम लेस पे करते हैं मिनिमम रेंट से तभी होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ क्वालिटी, fill in the blanks is a quality which should not ethically be followed by a critical thinker while in the process or critical thinking। ऑप्शन नंबर ए है ओपन माइंडनेस, सेकेंड है रिजर्वेशन इन अराइविंग एट अ कंक्लूजन, थर्ड है कॉन्टेक्चुअल एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड जजमेंटल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड जजमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द एन्युटी विथ एन इंडेफिनिट लाइफ विच मेक्स कंटिन्यूअस एनुअल पेमेंट इज टर्म्ड अस। फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलर एन्युटी, सेकंड है परपेचुइटी, थर्ड है डेप्रिसिएटिंग एन्युटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉन्टिन्यूअस एन्युटी। इसका आंसर हो जाएगा परपेचुइटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज कंसिस्टेंसी और एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विद कंपनी गोल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज गोल फिक्सेशन, सेकेंड है गोल कॉन्ग्रुएंस एंड थर्ड है गोल एम्बिग्विटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज गोल रीस्ट्रक्चरिंग। इसका आंसर हो जाएगा गोल कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज कंसर्न्ड विद द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड एडवाइस टू इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकंड है फाइनेंशियल लिवरेज, थर्ड है फाइनेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। In management, when managers place their personal goals ahead of corporate goals, such a problem is called as। First option agency problem, second mission problem, third is goal congruence, fourth option is corporate restructuring। इसका आंसर हो जाएगा एजेंसी प्रॉब्लम। इसमें क्या पूछा है? मैनेजर प्लेस देयर पर्सनल गोल्स अहेड ऑफ कॉर्पोरेट गोल्स, सच ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है? तो एजेंसी प्रॉब्लम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसेस इज डेफिशिएंसी अकाउंट एक्सक्लूसिवली ओपनड। कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस है जो डेफिशिएंसी अकाउंट में एक्सक्लूसिवली ओपनड होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, सेकेंड है इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग, थर्ड है अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज रॉयल्टी अकाउंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल इज कनेक्टेड टू विथ। फर्स्ट ऑप्शन नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, सेकंड ऑप्शन एप्लीकेशंस ऑफ फंड, थर्ड इज सोर्सेस ऑफ फंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ट्रेडिंग इनकम। इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ फंड। किससे कनेक्ट होता है? वर्किंग कैपिटल जब डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल तो कनेक्ट होता है एप्लीकेशंस ऑफ फंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट इज टिपिकली कॉल्ड इन फाइनेंस लैंग्वेज अस। फर्स्ट इज कैनिवलाइजिंग, सेकेंड इज वैल्यूएशन, थर्ड इज डिस्काउंटिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंपाउंडिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्काउंटिंग। Next question is fill in the blanks is an approach to ethics that focuses on the rightness or wrongness of actions themselves as opposed to the rightness or wrongness of the consequence of those actions. First option is pragmatic ethics, second is consequentialism ethics, third is deontological ethics and इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों deontological ethics। Next question is question number 40. Which treating fund fill in the blanks recognizes revenue at the point of sale and expenses when they are incurred? First option is realization method, second is revenue generation method, third is accrual method and fourth option is recognition method। इसका आंसर होगा accrual method। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए फर्म लेस द कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज्ड टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड इज ग्रोस सेल्स, थर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड।
Next question is the moral principle that governs a person's behavior or how an activity is conducted best describes the term. First option is commerce, second is trade, third is business and fourth option is ethics. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एथिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। A rupee earned today is more valuable than earnings the same rupee tomorrow. Which of the following term in the language of financial management explains this theory? First option is time value of money, second is valuation concept, third is investment concept and fourth option is compounding of money. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या एक्सप्लेन करती है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया लिमिटेड इज़ अ फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। इंडिया लिमिटेड क्या है? एक फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। वेयर अ शर्मा लिमिटेड इज़ अ कंपनी दैट इज़ फुल्ली मैनेज्ड बाय ए प्राइवेट मैनेजमेंट। और शर्मा लिमिटेड जो कंपनी है वो प्राइवेट मैनेजमेंट करती है। Subsequently, India Limited took over Sharma Limited in a hostile takeover by buying 72% shares of Sharma Limited. टेक ओवर कितना करती है शर्मा लिमिटेड? 72%, 72% बाई करती है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ शर्मा लिमिटेड आफ्टर द टेक ओवर। टेक ओवर के बाद कौन सा इसमें से बेस्ट ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज चार्टर्ड कंपनी, सेकंड इज गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनी, थर्ड इज हॉलीडे कंपनी एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जो शेयर्स बाय करती है, टेक ओवर करती है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट सब्सिडियरी कंपनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ए प्लेटफॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट। एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज क्या करती है? एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट में वेयर सिक्योरिटीज, जहाँ की बॉन्ड, शेयर्स, ईटीसी आर बॉट एंड सोल्ड, जो हम खरीदते बेचते हैं क्या? बॉन्ड, शेयर्स। प्राइसेस आर गवर्न्ड बाय फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑफन रेगुलेटेड बाय ए प्रोफेशनल बॉडी इज कॉल्ड एज। तो ऐसे प्रोफेशनल बॉडी को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मनी मार्केट, सेकेंड है इंडिजीनियस लैंडिंग, थर्ड है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे बॉडी को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। Which one of the following term is generally not a characteristics of a traditional accounting system? तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ आ हिस्टोरिकल इन नेचर, सेकंड इट मैचेस करेंट रेवेन्यू विथ हिस्टोरिकल कॉस्ट, थर्ड है इट कंसिडर्स इन्फ्लेशन, फोर्थ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट कंसिडर इंक्रीज इन नेट एसेट वैल्यू। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इट कंसिडर्स इन्फ्लेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विच इज लिस्टेड ऑन बीएसई एंड एनएसई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बीएसई और एनएसई किसका एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड है पब्लिक लिमिटेड, थर्ड है प्राइवेट एंड फोर्थ ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एनएसई बीएसई किस में आता है? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बुक कीपिंग। तो इसमें से कौन सा बुक कीपिंग का फीचर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ए पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग इज कॉल्ड अ बुक कीपर। तो क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग को ही बुक कीपर कहा जाता है। सेकंड, इट इज़ द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। थर्ड है बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इट कंप्लाइज क्लरिकल एक्टिविटीज नॉट एनालिटिकल इन नेचर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग इसमें मतलब इसका फीचर कौन सा नहीं है वो पूछा है, इसीलिए इसमें क्या बोला है? डज नॉट रिक्वायर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड द नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क ऑफ ए फर्म मेजर्ड बाय बेटा कोएफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, सेकंड है सिस्टमैटिक रिस्क एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन इज कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है एज पर प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 50, एज पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अ प्रोजेक्ट विल क्वालिफाई फॉर एक्सेप्टेंस इफ। फर्स्ट ऑप्शन
PI मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. Profitability index is greater than 1, profitability index is greater than 0, profitability index less than 0 and profitability index is less than 1. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. So friends, if you like my content then please do like, share and subscribe my channel.